to this seminar on transforming Indian agriculture. We are going to start this seminar in a few minutes. Meanwhile, I would like to inform you that we will have the panel discussion on this topic, and very shortly we are going to start this program, so kindly occupy your seats as soon as possible. Also would like to request you kindly put your mobile phones on silent or vibration mode. Thank you. Thank you. Namaskar. A very warm welcome to all of you to this very important seminar. The topic is Transforming Indian Agriculture, Innovation, Investment and Inclusive Growth. वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के इस द्विदिवसीय आयोजन में आज का ये द्वितीय दिवस, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर संवाद करने हेतु उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. We welcome all the dignitaries, eminent speakers, experts, investors and delegates from agro and pharma sector.
We also welcome our special guest and each one present here. Ladies and gentlemen, this particular seminar is organized by Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department, Government of Gujarat. I would like to invite on dais Shri Vijay Kharadi, IS, MD, GAICL. Sir, kindly come upon the stage. Can we have a big round of applause for Mr. Kharadi? I would like to invite on stage the moderator for this particular session, Mr. Deepak Parikh, Director ICFA. We have with us eminent speakers, Mr. Neeraj Shah, CEO, Hinbi Tech Incubations Private Limited, and Mr. Vikram Sadia, MD, Agri-C Group. Today, we have with us a special guest, Mr. Dharam Kumar Siraj, High Commissioner of Cooperative Republic of Guyana to the Republic of India. Sir, we welcome you. Once again, we extend a very warm welcome to all the dignitaries on the dais and as well as off the dais. Ladies and gentlemen, as we all know, transforming Indian agriculture, innovation, investment, and growth. This topic is really crucial as it addresses the fundamental need to modernize a sector that sustains over half of the nation's population, and it is vital from food security. The focus is on leveraging agri-tech innovations like AI and drones to drive precision farming, which coupled with robust public and private investments. This will boost productivity and ensure sustainable growth. Ultimately, this transformation is essential for enhancing farmer incomes, creating new rural livelihoods, and strengthening India's global position as agriculture powerhouse. With this note, I would like to invite Shri Vijay Kharadi, IS, MD, GAICL for the welcome address. Thank you, Praptiben. I welcome High Commissioner of Guyana. Sir, you are welcome in our session. Basically, it's transforming Indian agriculture. So what we are talking is about basically innovation, investment, and inclusive growth. Good morning to all. Dignitary present on the dais, Mr. Deepak Parikh, Director ICFA, Indian Chamber of Food and Agriculture, Mr. Neeraj Shah, CEO, Hanbi Tech Incubation Private Limited, Mr. Vikram Sadia, MD, Agri-C Group. So basically ये जो हमारा सेमिनार है उसमें बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर जिस तरीके से हो रहा है उसमें हम लोग कैसे उसको एम्पावर करें, फार्मर को कैसे एम्पावर करें, इंक्लूसिव कैसे हो, सोशल सेक्टर भी कैसे शामिल हो. तो इस टाइप के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ये जो सेमिनार है उसका आयोजन किया गया है. तो जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो इनोवेशन में बेसिकली वी वांट टू यूज़ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्रॉप एंड यील्ड्स, reduce waste and promote sustainable and agriculture practices. This includes precision farming, digital agriculture and climate resilient agriculture. When we talk about investment, so it is basically when we say कि भाई 50% से ज़्यादा हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या उसके रिलेटेड फील्ड में काम करता है, तो वहाँ से हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, वहाँ से हमें उनका इनकम बढ़ाना है. So how we can ask the private players to invest in farms and have improved productivity as well as enhancing income of our farmers, because हमारे यहाँ जो फार्मर है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा है. आप अगर डेटा देखोगे तो मोर देन 80% फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरीज में आते हैं. तो अगर हम उनका नहीं सोचते हैं तो फिर हमारे लिए जो जितने भी इनोवेशन हैं, जितने भी हमारे आइडियाज़ हैं वो इतने काम नहीं करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली वी इनवाइट पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग अवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन सिस्टम, फार्म मैकेनाइजेशन. दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग एग्री स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. हमारे यहाँ कल हमने एक
एग्री स्टार्टअप जो है, जो बेसिकली फार्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक सेमिनार हमने कल रखा था. सो बेसिकली दे आर कमिंग विद आउट ऑफ बॉक्स आइडिया कि कैसे हमें नज़रिया कैसा होना चाहिए. जैसे ये भी होता है कि भाई आपके पास फार्म है तभी आप खेती कर सकते हैं. देर इज़ लॉट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, लॉट्स ऑफ अदर अर्बन फार्मिंग, देर इज़ ऑल्सो वर्टिकल फार्मिंग, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग. तो कैसे नए आइडियाज़ है, कैसे उसको इंक्यूबेट किया जाए और उसको एक स्टार्टअप में लेके फिर उसको एक लार्ज स्केल पे कैसे लेके हम जा सकते हैं, उसके लिए इनोवेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है. तो उसके लिए ये अलग अलग जो सेमिनार हैं वो हमने रखे हुए हैं. इंक्लूसिव ग्रोथ का जब हम बात करते हैं तो व्हाट आई हैव सेड बिफोर दिस, द 80% और मोर देन 80% ऑफ फार्मर जो है वो आपके फार्म के साथ जुड़े हुए हैं. बट उसमें 50% महिलाएं हैं जो भी फार्म के साथ जुड़ी हुई है, पर उनका भी जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ में नाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके बहुत सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है विच कैन एम्पावर देम. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हो तो फार्मर को अच्छे से अच्छा सीड कैसे मिले, वो जर्मिनेट हो, उसका हार्वेस्ट कैसे अच्छा हो, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करके उसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, इस टाइप का जितना स्टेप बाय स्टेप इंटरवेंशन प्राइवेट प्लेयर्स या यहाँ पर सब दीपक जी भी आए हुए हैं, एमडी साहब, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दे विल लेट अस नो कि भाई कैसे कहाँ कहाँ इंटरवेंशन हम लोग कर सकते हैं ताकि व्हेन वी पुट द सीड वैसे वो ग्रो कैसे हो सकता है, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है और ओवरऑल कैसे जो फार्मर है उसका इनकम बढ़ सकता है. तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम जानेंगे. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एनहांस क्रॉप यील्ड्स एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी. फार्मर वेलफेयर का भी यहाँ पर हमने बात किया है. तो फार्मर वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का ओनली नॉट ओनली agriculture sector where we are giving them the benefits and subsidies. There are lots of other sectors like rural development, water and sanitation. सब तरह का सहाय जो है गवर्नमेंट उनको करता है, हर प्रकार की सहायता जो गवर्नमेंट उनको करता है. तो उनके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल जो फार्मर है उनको हेल्प मिलेगी तो वो अच्छे से आगे बढ़ सकता है. क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ अबाउट द फूड सिक्योरिटी. जब हम हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हाउ वी इंश्योर कि भी हमारे पास प्रॉपर एंड एक्सेसिबल जो न्यूट्रियस फूड है वो सबको मिले. तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन सॉइल हेल्थ एंड वाटर कंजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Government also giving lots of subsidies on farm mechanizations and other inputs that they are giving, whether it is seeds or other things. तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है गुजरात एग्रो की तरफ से भी. जैसे वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, उसको वैल्यू चेन में प्रोडक्ट को कैसे लाए ताकि उसका वैल्यू एडिशन करके हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए. तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट का विज़न है, लोकल टू ग्लोबल एंड ग्लोबल टू एक्सपोर्ट, तो इस टाइप का चीज़ें भी हमारे यहाँ से हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ट्राई कर रही है. उसके साथ साथ जो हमारे लिए चैलेंजेस है लाइक क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द चैलेंज, वाटर स्कार्सिटी, soil degradation, farmer distress. So these are the some of the challenges we are facing. But with help of private partners or ICFA and the other esteemed guest here, we can adjust and we can solve this problem. So basically, when we focus on innovation, investment, inclusive growth, so they can transform agriculture sector and making it more sustainable, productive, and equitable to all of us. सो यहाँ से जो हम लोग सीख के जाएंगे, जो सारी चीज़ें जान के जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम नीचे भी एज एन अवेयरनेस अगर फार्मर्स या जो भी पशुपालक है या जो भी लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है फार्मर्स को नहीं पता होती है. क्योंकि फार्मर्स और टेक्नोलॉजी हमेशा एक ऑपोजिट तरीके से देखा गया है कि फार्मर्स को टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है. टेक्नोलॉजी बेसिकली हम साइंस के साथ, इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं. बट इतने सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, आज भी ये सेमिनार हमने इसी के लिए रखा है. तो टेक्नोलॉजी को कैसे अच्छे से एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के फार्मर का इनकम है वो हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आज हम यहाँ सेमिनार पे चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for your welcome address, as well as you shared the viewpoints and the initiatives taken by the government of Gujarat. But when we are talking about transformation, तो ये जो परिवर्तन यात्रा है ये सिर्फ गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकते, इसमें प्राइवेट
पार्टनरशिप भी चाहिए, एक इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए जो हम साथ मिलकर कुछ परिवर्तन कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ आज का ये परिसंवाद का हम आयोजन किया गया है। और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर दीपक परीख, डायरेक्टर ICFA, फॉर योर एड्रेस। So, ma'am, rather than address, actually, I sit and talk. Is it okay? Okay, That that's I feel more fine. comfortable. Yes, sir. So, just a little bit of deep stick check. How many of you understand agriculture or associated with agriculture? Can you raise your hands? Okay, nearly everyone. So, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको what should be the level of discourse that depends on the audience, right? मैं ज़्यादा ही खेती की बात करूँ, मालूम पड़ा कि 30% ऑडियंस ही खेती समझती है, तो बोलेंगे क्या बोल रहा है। वैसे विजय भाई ने बहुत अच्छी बात की about like they are having this initiative where they want to learn more, understand more, improve sector more. So that brings me 30 years back when I was student. हम मिड लेवल के स्टूडेंट हुआ करते थे सर, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे इंजीनियरिंग के अंदर, मतलब टॉपर हरदम है ना, और लास्ट मोमेंट के ऊपर भी एग्जाम में जाने से पहले भी किताब में दिखता था कि कुछ 4 चीज़ें और देख लूँ मैं। अब यही हालत गुजरात का है इन एग्रीकल्चर। दे आर द टॉपर्स, फिर भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम और क्या इंप्रूव करें। सेम एंजाइटी कि यार मैं टॉपर से सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ नहीं हो जाऊं यार, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। और जो हम 100 में से 50वें नंबर पे रहते थे, हम सोचते 50 की जगह क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, फर्क क्या पड़ने वाला है। सो नाउ दैट इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग गुजरात, एंड लकीली आई हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग वेरी क्लोजली विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन 2008 व्हेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर। और तब से हमने देखा है कि वेदर इट इज़ अबाउट एग्रीकल्चर, वेदर इट इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, he was a hands-on person. So I think a vision वहाँ से I trickled down हुआ। Vibrant Gujarat also, it was his brainchild and it is doing very well, and congratulations Mr. Vijay for doing that. No, मैंने गुजरात की तारीफ इसलिए तो नहीं की है कि इन्होंने यहाँ पे बुला के बिठा दिया है, राइट? अभी होस्ट की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ that will make you understand what I am saying. Is it making sense or not? So Gujarat today is having close to 9 million farmers or farm laborers who work, which is roughly 7% when we take it as percentage in India. So हमारे किसान और जो खेती किसानी के अंदर मजदूर है वो हिंदुस्तान के 7% है। हम जब टोटल एरेबल लैंड की बात करते हैं तो रफली 8 मिलियन हेक्टर्स, विच इज 5% ऑफ इंडिया। अब मजे की बात यह है कि जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो खरीफ के अंदर जो सोइंग होती है वो 70% ही होती है। गुजरात की इस बार की खरीफ की सोइंग है 7 मिलियन हेक्टर्स। We are close to 90% of arable land is being sown in खरीफ। अब इसके अंदर भी चलो ठीक है, किसान एक्साइटेड है, इसमें सरकार का योगदान किया है। Now when we talk about overall खरीफ सोइंग इन इंडिया, it is still 6.25% also। छोटी जमीन है, बिहार यूपी बड़े स्टेट है। लेकिन मजे की बात यहाँ ये है कि खरीफ के टाइम इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज 44%। सर गुजरात में 6 मिलियन हेक्टर इज इरिगेटेड लैंड, 3.8 मिलियन हेक्टर इज माइक्रो इरिगेटेड लैंड विच सेव्स वाटर। ये थॉट प्रोसेस टॉपर के पास ही आता है। अब ये टॉपर तो बन गए, चलो भैया, इससे फायदा क्या हुआ? व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट GVA, इट इज रफली 4 लाख करोड़। हिंदुस्तान के अगर अपन एग्रीकल्चर GDP से कंपेयर करते हैं, इट इज 9%। यहां से डिफरेंस चालू होता है। हिंदुस्तान की 7% जमीन है, लेकिन एग्रीकल्चर GVA 9% है। हिंदुस्तान में टोटल जो अपन फार्मिंग की अपन बात करते हैं, जो फार्म प्लस फार्म लेबर, वो 7% ही है, लेकिन GVA 9% है। चलो यहाँ पे भी अपने ठीक है, थोड़ा सा प्रकृति का आशीर्वाद होगा, इसके कारण थोड़ा सा GVA अच्छा है। जैसे 2% GVA एडिशनल GVA देन व्हाट यू आर पुटिंग, बाकी का नेगेटिव होता है, जमीन से कम परसेंटेज GVA होता है। यहाँ पे गुजरात ने एक और चमत्कार किया है। गुजरात का एक्सपोर्ट, एग्री एक्सपोर्ट 80,000 करोड़ है, विच इज 20% ऑफ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट। सबसे ज्यादा पैसा कहां पे मिलता है किसान को? व्हेन ही एक्सपोर्ट्स। यहां पे व्हाट डिफरेंशिएट गुजरात फ्रॉम अदर स्टेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कमिंग बैक सर, कांग्रेचुलेशन फॉर डूइंग दैट। अब ये हुआ क्यों? आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने ऐसा क्या जादू की छड़ी चलाई कि एक्सपोर्ट में तेजी है, GVA बाकी लोगों से ज्यादा है, यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन इज वेरी गुड,
And any clue? Can anybody raise hand? ऐसा क्यों है? Gujarat Sarkar 10% of their budget has consistently, around 10%, putting in irrigation, food, agriculture, allied services. अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करोगे किसी सेक्टर में तो वो सेक्टर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. हम में से बहुत लोग जब देखते हैं गुजरात इज अ इंडस्ट्रियल स्टेट, अच्छी बात है, इंडस्ट्री का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है शेयर, लेकिन गुजरात इज ऑल्सो अ एग्रीकल्चर पावर हाउस बिकॉज इट क्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फार्मर्स. सो दैट इज समथिंग विच आई बिलीव need to be appreciated, need to be lauded, and I believe going forward also Gujarat continue doing that, and ICFA would like to put all the support based on being a knowledge partner of the state. We can definitely work in enhancing that. Now that brings me to the area of interest which we are having. So innovations. Now unfortunately kya hai ki when we talk about innovation, the innovation is used in very loose term. हम में से काफ़ी हिंदुस्तानी इनोवेशन को जुगाड़ समझ लेते हैं. इनोवेशन एंड जुगाड़ इज वर्ड डिफरेंट. आपको काफ़ी अपने गुजरात में भी काफ़ी ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं बोले हम जुगाड़ शोध यात्रा कर करके जुगाड़ ढूंढेंगे, राइट, और वो जुगाड़ से देश आगे बढ़ जाएगा. आज आपका कंट्री पार्टनर है नीदरलैंड्स, उसने जुगाड़ नहीं किया. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू नीदरलैंड? कैन यू रेज योर हैंड्स? ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट मनी. यूएस के पास सेकेंड लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर है और जमीन साउथ गुजरात जितनी है. Their yields and productivity is 28 times of India. So इतनी कम लैंड के अंदर, and see we are blessed. We are in tropical zone where agriculture is good. They are in a zone where actually for 9 months you are having temperature which is 5 degree to negative degree. उसके बाद भी उगा पा रहे हैं, बर्फ गिर रही है तो भी उगा पा रहे हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. So yes, we have to learn from them. And why they have been able to do that? Innovation. 40 years back, they got on the path of innovation. So I would say that actually Gujarat is already been investing, and I would request government also to look at how we can invest more in innovation, right? Definitely micro irrigation, farmer support, all these are required. Sustainable agriculture is required, but you have to also invest in innovation. Now with that, I would go to Neeraj. So Neeraj, you have done various projects, right? All the way from Indonesia, the Better Rice Initiative project, in Gujarat also, the Smart Potato, as well as in Africa, Tanzania, the Kapunga project. I would like to understand from you that actually how innovation and technology has been able to make a difference in such projects. थैंक यू दीपक जी. आपने बहुत सही चीज़ बताई है कि इनोवेशन को किस तरह से लेना चाहिए. बीइंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले मैं गुजरात के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा. हमने 2018 से 2019 सीज़न में स्मार्ट पोटैटो प्रोजेक्ट किया था यहीं पे अपने साबरकांठा में, हिम्मतनगर और सराउंडिंग विलेजेस में, जहाँ पे डेफिनेटली बनासकांठा साबरकांठा इज़ काइंड ऑफ अ हब वी कैन से, जहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा पोटैटो अच्छी वेराइटीज़ और वो सब होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए. चिप्स एंड वेफर्स के लिए वेराइटीज़ भी वहाँ शो की जाती है. सो वी स्टार्टेड विद द स्मॉल इंटरवेंशन विच वी कॉल एज डिजिटल एग्रीकल्चर, जहाँ पे जैसे सर ने भी बताया कि टेक्नोलॉजी एंड फार्मर का थोड़ा कॉम्बिनेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड फार्मर्स आर राइट फ्रॉम देयर साइड, ट्रस्ट, क्योंकि कोई भी कभी भी आके बताएगा ये मेरी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, ये यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा. हम सब ने एक्सपीरियंस करके देखा है कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा एज अ स्टार्टअप की भी बात की है, सो सबसे ज़्यादा रिस्क अगर कोई लेता है तो वो किसान है. साल में 2 सीज़न या 3 सीज़न लेता है, वो उनके लिए तो एक स्टार्टअप ही है ना, कि जब सोइंग करते हैं, सीड डालते हैं, पता नहीं है हार्वेस्ट टाइम पे क्या होने वाला है, क्लाइमेट का कोई आइडिया नहीं है, मेरी प्रोड्यूस होने के बाद व्हाट विल बी द प्राइस, फार्मर्स डोंट नो एनीथिंग. सो ट्रस्ट फैक्टर जहां आता है वहां पे व्हेन वी गो विद एनी टाइप ऑफ इनोवेशन फॉर द एग्जीक्यूशन पार्ट. इनोवेशन का मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी बना दी, उसको इनोवेशन नहीं. व्हाट यू आर क्रिएटिंग से इंपॉर्टेंट है व्हाई यू आर क्रिएटिंग. कोई भी इनोवेशन करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हैं हम, उसके बाद उसके इनोवेशन पे काम करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन सही तरीके से होगा.
सो इन स्मार्ट पोटैटो व्हाट वी डिड वाज, हमने डिजिटल एग्रीकल्चर के थ्रू गुजराती लैंग्वेज में एक सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू उनसे शुरुआत की कि आपकी प्रोफाइलिंग करके हम आपको एडवाइजरी देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है ये, लेकिन छोटे छोटे जो इनोवेशन सर अभी बता रहे थे उसमें कितना फायदा किसान लेवल पे होता है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे हम एक एम लेके चल रहे थे कि अगर फर्स्ट फेज में वी वांट टू क्रिएट अ सिनेरियो कि जहां पे किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वी वांट टू रिड्यूस। नाउ आप लोग कई फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे नहीं होंगे, या बेसिक चीज भी है कि किसान को अगर कोई भी ड्यूरिंग द फार्मिंग सीजन कुछ भी चीज खरीदनी जाती है वो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर पूछता है ठीक है आपने कौन सा क्रॉप लगाया है, कितने एरिया में लगाया है, उसके हिसाब से वो उसे दवाइयाँ बेचता है। अभी स्मॉल इंटरवेंशन वी डिड विद द जियो मैपिंग। किसान को आप इस हाईफाई टेक्नोलॉजी तुरंत ही दे दोगे विदाउट एनी ट्रस्ट, कंटिन्यूस सीजन में एफर्ट दिखाए बिना कि आपको मोबाइल दे दिया है उस पर आप आपका फार्म ड्रॉ कर दीजिए हम आपको बताएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इनोवेशन एंड एग्जीक्यूशन गो हैंड इन हैंड। फार्मिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आपको ऑन ग्राउंड उतर के हैंड होल्ड करना पड़ेगा किसान को। आप ड्रोन लाके दे देंगे किसान नहीं उड़ाने वाला है, ये हम सबको पता है। सो ड्रोन दीदी का जो प्रोजेक्ट है वैसे इनोवेशन अपना चाहिए। हमने जो इनोवेशन में स्मॉल चीज की कि हमने एक जियोटैग मैप से उनकी हेल्प क्या की। अभी अपने आप गुजराती बैकग्राउंड से जो भी होंगे या जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है कि मेरा 3 हेक्टेयर जमीन है। अभी वो किसान शॉपिंग करने जाता है जब अपनी परचेस करने जाता है इनपुट्स के लिए तो वो भी 3 हेक्टेयर ही बताएगा, लेकिन एग्जैक्टली सोइंग 3 हेक्टेयर में नहीं होता है, वो 2.5 में होगा, 2.3 में होगा। ये कैसे पता, ये किसी को नहीं पता, ना एग्री इनपुट बेचने वाले को पता है और किसान को भी नहीं पता है। तो ये छोटे डिजिटल इंटरवेंशन से अपने एग्जैक्ट एरिया ऑफ सोइंग आइडेंटिफाई करके अगर हम उसको हेल्प करेंगे तो 2.3 हेक्टर के हिसाब से ही विल परचेज द प्रोडक्ट्स दैट विल कट डाउन हिज कॉस्ट वेरी इफेक्टिवली। ये बहुत ही स्मॉल इंटरवेंशन है डिजिटल एग्रीकल्चर का, जो अभी तो बहुत लेवल है, सैटेलाइट लेवल पे हम चले गए हैं, ड्रोन आ गए हैं, IoT आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, लेकिन एक स्मॉल एग्जांपल है कि जहां से आप किसान को इस लेवल पे और इसमें ट्रस्ट क्रिएट करना है कि ये इम्पैक्ट आया है। जब आप डेटा डिजिटाइज करोगे उससे सीजन के बाद किसान को हेल्प होगी। दूसरा सर हमने ये ड्यूरिंग द 18 से 20 के टाइम में यानी ऑलमोस्ट अपना मार्च के आसपास पोटैटो हार्वेस्ट का जब यहाँ सीजन खुलता है, सो कोरोना आ गया था। अभी कोरोना में तो सब बंद हो गया, तो अब क्या करें। सो आवर टीम डिड अ वेरी सिंपल थिंग। आज बाकी सारी टेक्नोलॉजी आप भूल जाइए, व्हाट्सएप पे एवरीवन इज देयर। सो व्हाट वी क्रिएटेड अ स्मॉल व्हाट्सएप सपोर्ट सिस्टम थ्रू द वीडियो कॉल्स with the buyers like ITC, Balaji, to make sure the quality and quantity of those particular potatoes with different varieties, we help them to sell it to the corporates. A small intervention with the help of WhatsApp. So we have to think for the innovation in those lines. It's not like very big satellite imagery and everything is useful. But before that, you need to understand the nuances of how execution comes. अभी सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारा जो in brief yeah sure thank you in Africa what we did was for rice crop in Kapunga 20 years back this project started. We incorporated the digitization part as well as the mechanized part. We use the technology which is called GPS enabled harvesters and tractors to make sure it saves time as well as the outcome which is very impactful. So in 2006-7 where the yield जो almost 700-800 kg per hectare था, now we have reached to 7-8 ton per hectare. So this is how innovation can help, but at the same time we need to understand the ground reality to handhold them. And in Indonesia we did the Better Rice Initiative Asia for the rice as well, where we created a system where after creating a profile of a farmer, जहाँ किसान की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है डिजिटाइज वे में कि कौन सी वेराइटी कर रहा है, कितने एरिया में कर रहा है, सो मेक श्योर वी इंक्लूड द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, जहाँ पे उनके लिए एक फार्म जैसे हमारे लिए एक कैलेंडर बन जाता है कि कौन सी एक्टिविटी मेरे को कब मीटिंग अटेंड करनी है, वैसे किसानों की हमने एक कैलेंडर बना के दे दिया
कि अगर 5 तारीख को आपको सोइंग करना है तो 15 दिन पहले आप लैंड प्रिपरेशन शुरू कर देना, इरिगेशन कब करना है, पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर या जो भी XYZ ऑर्गेनिक आपको यूज करना है वो कब करना है, ऑन ईच एंड एवरी स्टेज बिफोर द एक्टिविटी हम उनको नोटिफिकेशन भी भेजते थे। तो वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी जिससे ये चेंज आया है उसके प्रोडक्शन में प्लस लाइफस्टाइल में भी। और स्पेसिफिकली इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो वहां पे जो इश्यूज प्रोडक्शन को लेके आ रहे थे, सो टेक्निकली एक्सपर्ट के थ्रू हमें ये पता चला कि जो वो वेराइटी कर रहे थे वो फाइनल स्टेज में बहुत हाइट पे चली जाती थी। सो जब आपका हवा चलती है तेज तो वो ज्यादा जल्दी गिर जाते थे। तो वी आइडेंटिफाइड अ वेरी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल वेराइटी जिससे ये इम्पैक्ट ना हो। सो ऐसे छोटे छोटे इंटरवेंशन से ऑन ग्राउंड if you do with the hand holding execution, definitely we can create the change for farmers life. Thank you. So that is very interesting. अभी क्या है कि I strongly being a technocrat, in fact I will be speaking sir, giving a keynote on artificial intelligence in agriculture innovation. Right? मेरी बातों से आपको लग रहा होगा टेक्नोलॉजी इस आदमी को ज़्यादा आती नहीं होगी. So I believe a technology which is invisible, that only works. WhatsApp के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ा तो भी adoption हो गया. क्यों? क्योंकि it is just so simple. सो सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। रिसेंटली 6 महीने पहले मैं हरियाणा के गांव में किसानों के साथ बैठ के, वहाँ पे आप में से कुछ लोग नॉर्थ में होंगे, जानते होंगे, थोड़ा सा शाम को सभा लगती है, हुक्का हुक्का बैठ के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। सो मैं वहाँ बैठा था और मैं वहाँ पे ज्ञान डाल रहा था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कि ना भैया नेचुरल फार्मिंग के साथ आप बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करो, राइट, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, दैट इज़ अ वे फॉरवर्ड, केमिकल हमको कम करना चाहिए। तो थोड़ा पीछे बैठे हुए एक ना ताऊ थे, तो पीछे आवाज़ दी उन्होंने, अबे तू 50 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। एंड आई वाज, मैंने कहा ताऊ मैं 50 साल का हूँ ही नहीं, 48। तो बोले तेरे जैसे बहुत से आए और सब बेवकूफ़ बना के गए। मैं ताऊ समझाओ। तो बोले 1960 में तू आया था। वो तू तड़ाके से बात करते हैं, तू आया था, मेरे को बोला कि बहुत पैसा कमाएगा ताऊ, फर्टिलाइजर डाल लो। मैंने डाला। फिर तू 10 साल के बाद बोला कि यार ताऊ तू फर्टिलाइजर डाल रहे हो, अब कितना डालना समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वैरायटी देता हूँ, वो वाली उगाना, तो मैं आपको बता पाऊंगा कितना फर्टिलाइजर डालना है। तो फिर तू मेरे को बता के क्या कि वाली वैरायटी मेरे को डालनी है, चाहे गेहूं की या चावल की। मैंने वो किया। उसके 15 साल के बाद तू आया, बोला कि ताऊ ना इसके अंदर तो यील्ड इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि कीड़े लग रहे हैं, और कीड़े से लग रहे हैं क्योंकि ना फर्टिलाइजर से इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ताऊ भी फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड भी डाल दो। मैं पेस्टिसाइड भी खरीद लिया। फिर तू आया 2000 के अंदर, बोला ताऊ क्यों परेशान हो रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, एक काम करो ट्रैक्टर ले लो। बोले साल का 1500 घंटा यूज करता हूं और 10 लाख का चूना लगा दिया मेरा, अब तू आया नया लेके बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज हाउ द फार्मर इज थिंकिंग टुडे। सीइंग इज बिलीविंग। एंड अनफॉर्चुनेटली हम काफी जो प्रोजेक्ट की जो नीरज भाई बात कर रहे थे, अगर आप उसका लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट देखो, आई थिंक ब्रिया वाज फंडेड बाय GIZ, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, राइट। 4 साल के बाद प्रोजेक्ट खत्म, जय श्री कृष्णा, किसान बैक टू स्क्वायर वन, राइट। आई थिंक स्मार्ट पोटैटो वाज फंडेड बाय सम कॉर्पोरेट, 2 साल चलाया उन्होंने, अपना प्रमोशन किया, मार्केटिंग किया। किसान बोलता है 1 साल और कर दोगे मेरे को ट्रस्ट आ जाएगा तो मैं खुद ही पैसा देने लग जाऊंगा, लेकिन वही 2 साल। सो अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज दैट एक्चुअली लाइक द फार्मर नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग, एंड आई थिंक दिस इज वेयर एक्चुअली द डिफरेंशिएशन व्हेन आई एम सेइंग 20% अगर एक्सपोर्ट है गुजरात का व्हेन वी आर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, इज बिकॉज दैट हैंड होल्डिंग वाज देयर। कमिंग टू विक्रम, यू हैव बीन ऑन द आउटसाइड, राइट। जो किसान इन्होंने उगाने की बात कर दी है, अभी दिक्कत ये आती है कि आप लोग सही भाव में बेचते नहीं है किसान का माल, राइट, खरीदते नहीं है सही भाव पे, फिर बेचते नहीं है। हाउ डू यू सी दैट एक्चुअली टेक्नोलॉजी इनोवेशन और राइट पॉलिसी इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज फाइन, बिकॉज अभी सर जो भी ट्रेड के अंदर डिस्कशन होता है ना, तो अभी सबसे बड़ा सर मुद्दा यही है, हाउ टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। जब भाव बढ़ जाते हैं, राइट, ऊपर चले जाते हैं, ड्यूटी हटाओ, हमको इंपोर्ट करना है, हमारा कंज्यूमर मर रहा है, और उसके बाद जब खुद को नुकसान हो जाता है, भाव गिर जाते हैं, किसान को MSP नहीं मिल रही है, ड्यूटी लगाओ वापस, राइट। सो अभी फेवरेट पास टाइम ऑफ द नेशन इज दैट एक्चुअली क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज गवर्नमेंट इज राइट, गवर्नमेंट इज रॉन्ग 90% ऑफ द टाइम in making import export policy. So now your views, how technology can solve this problem? Hello. Thank you, Deepak ji. First of all, as you already told me that I'm thinking outside and out of this farming game, but honestly, I'm already connected
with the farming. When you were talking about the agriculture and the farmers, how they were, so I remember one case when before 14 years, there was no WhatsApp, there was no other communication tools. And I started like a international export, that most of the millers were actually selling all the commodities through the merchant exporters, right? They were not actually the exporters. So, and those millers now, right now, they are the leading exporters in India. And how that actually change came? That change came with the technology, right? So technology has actually transformed the agriculture. Now regarding the trading, like we are facing all the time, I'm seeing the most of the products like household and grocery and other things are getting increased, but you see the rice price. We are fighting in the groups that why you guys are selling at this price. So there is a lacking in the government policy, if you say that. Why? Because in that they have created the MSP, they have created everything, but they are just thinking in order to have a better policy, better things, but the prices are not actually getting. Ultimately, if you see, a phone was coming 10,000, but now phone is coming at 1 lakh rupees. But the rice was coming at 20 rupees and still it is at the 20 rupees. So all this is actually should be clustered in the technology. Now let's see why we actually talk about the technology or transformation in agriculture. It will help us not only for farmers, but the business people or each and every consumer. Like how? Because ultimately a consumer is also a businessman and they are also doing something as a business. So now if I talk about the technology, we are actually adding a different innovations, which is either it is AI, it is either cloud chain, blockchain, all the trading technologies. So what we are facing is a support from the government, a technological adoption from the government. Still they are not actually, so how it can? It can be only through the investment, it can be through a better investment policy and different trading clusters. So that will help most of the technology, and that is actually inclusive growth for everybody. So still there are many things in the trading we are facing as agriculture, but that's a part. And still I would request to the government that if they can give a more and more investment, either it is through subsidy or either it is through any of the clusters, it will be more important. Thank you. So interesting perspective. So like Vikram has been doing trade for a long time, exporting to I think more than 30 odd countries. Yeah, right. So the nuances I would because we are I think coming towards the end of the session, the leakage and wastage in the systems are one of the very key issues, right? Whether we talk about up, down, south to most of the states, when we talk about the civil supplies, right? Government is one of the big purchaser of agriculture commodity, right? If you see wheat and rice, they are having lion's share. Similarly, now Government of India, luckily, have started purchasing more oil seed as well as in गुजरात में सर groundnut हर बार सरकारी खरीदती है काफ़ी बड़े मात्रा में और बहुत अच्छी बात है ये. And similarly, we have seen जब हरियाणा में इशू था तो मस्टर्ड भी खरीदा गवर्नमेंट ने. लास्ट ईयर तुअर और उससे पहले चना भी खरीदा. तो जब भी डिस्ट्रेस होता है गवर्नमेंट इंटरवीन्स. Now technology investment is required. How do you ensure that pilferages, leakages and wastages doesn't happen? And I think all the states are struggling in that, right? आप किसी भी स्टेट में चले जाओगे तो issues with the transparency, issues with the, I would not quote the wrong word, but I would say that not very clean businesses, right? And then actually not even first in first out principle is followed, right? Suddenly you find that 2025 में 2021 का माल बिक रहा है, तो भाई 2021 का माल 2025 में क्यों बिकना चाहिए, right? Forget about the loss to the government. It should have been liquidated long back. But it is also, is it, आप आज से 4 साल पुराना अनाज खाना चाहोगे जिसके ऊपर 1 साल की फ्यूमिगेशन 3 बार होती है, उसकी जगह 4 into 3 12 बार फ्यूमिगेशन हो चुकी है, right? So what I'm saying that we need a strong investment
and technology adoption so that transparency and all the wrong practices can be moved off from civil supplies and storage and procurement of the grains. Second, we would also request the honorable government and both the central and the state government that एक तरफ पे हम बात करते हैं कि किसान को हर साल 5% ज़्यादा MSP मिलनी चाहिए, that's good. और एक साइड से हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन भी कम रहे. अगर आप 5% सीरियल्स के, पल्सेस के, ऑयल सीड के भाव बढ़ा देंगे तो सर 5% आपका इन्फ्लेशन में दिखना चाहिए, तो सिंपल लॉजिक. लेकिन हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पलंग है, राइट, वो 6 फीट का है, हम 3 फीट की चादर से उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं. हर साल हम MSP बढ़ा देते हैं और हर साल हम बोलते हैं इन्फ्लेशन नीचे लेके आओ. Now both thing doesn't work. So somewhere we will have to find that the sweet spot, that how do we address this issue. I know that actually this is have to work with the government of India also, and we have already started seeing that state government also आजकल एक बोनस कल्चर में चली गई है कि राइट हम 400 दे देंगे, हम 500 दे देंगे per ton का, कोई राइस पे दे रहा है, कोई दाल पे दे रहा है. So again that is also distorting the market, and market need intermediaries. Government is buying large amount but government cannot buy 100%. So हम जब भी बोलते हैं कि बिचौलिए नहीं चाहिए, सर जिस दिन बिचौलिए नहीं होंगे तो खाना किसान से आम आदमी की प्लेट में नहीं आएगा. So we have to also ensure that actually we take care of interest of the, safeguard the interest of the trader also. And the last, definitely I am saying that digitization is way forward, right? Yields of Gujarat has done extremely well in a lot of areas, but when we talk about comparing the yield, because now Gujarat I am saying it's at the global level. I am not comparing it with any of the Indian state. When we compare our yields productivity per acre to the global benchmarks, we are pretty low. So I think this is where we'll have to work so that actually we are able to compete with Netherlands, or we are able to compete with Australia, we are able to compete with America. I think that has to be the aspiration of Gujarat. And with that, I would like to thank all of you for your patience hearing. Garvi Gujarat, thank you. So, okay, we have time? Yes, 5 Okay, minutes. excellent, excellent. So Neeraj, in one-liner, right? Sir is here, he's government, right? इनसे क्या मांगना चाहेंगे आप? Steady policy and long-term investment for the successful projection. Perfect. Vikram? Honestly, see, I'm based in Dubai, and as you know, I have started one of the technology mobile app and AgriGuru Online, and in that it is a huge investment required. It's not a here Silicon Valley that I can find a millions and then I can just invest it. So of course, a government should, help those startups or some innovations which can transform the whole agriculture technology in terms of export-import. So that would be kind of a request in order to investments. Just for those who are not aware, Government of India is having under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare funding scheme which 2,000 crores have been allocated for startup. So please let me know. Actually, I'll connect you with the right people there. And I would say a state should also leverage. Sir, now question to you also. Sir, what is your expectation from the technology and the trade community? Basically, when we think about the agriculture and technology, सबसे पहले दिमाग में ये आता है, जैसे हम गवर्नमेंट में काम करते हैं तो जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो ये हमेशा एक, मैंने अभी भी यहाँ पर भी बोला था, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द फार्मर्स. तो एक जो अवेयरनेस फार्मर में होना चाहिए, एक जो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात, ट्रस्ट, क्योंकि फार्मर को ट्रस्ट ही नहीं है. बेसिकली गवर्नमेंट पे भी वही उतना ही प्रॉब्लम है, उनको गवर्नमेंट का भी प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी उनका ट्रस्ट नहीं है. बट आप जब नई कोई चीज़ लेके उनके साथ जाते हैं तो उनको इतना ट्रस्ट नहीं, बिकॉज ऑफ द मे बी पास्ट एक्सपीरियंस. तो एक ट्रस्ट जो है हमको बिल्ड करना पड़ेगा फार्मर के साथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम प्राइवेट साइड और गवर्नमेंट साइड, जो भी हमें करना पड़ेगा वो बाय वे ऑफ पॉलिसी भी हम लोग करेंगे. और जो टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो एक कैसे उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाए बाय वे ऑफ इंटीग्रेटिंग डिजिटल लिटरेसी और बाय वे ऑफ डिजिटल दिस ड्रोन एंड ऑल दिस थिंग्स. ये कैसे काम करता है, कैसे इनपुट देता है और उसका आउटकम क्या आता है. तो ये फार्मर्स थोड़ा समझना चालू करेंगे कि भाई आपने हमें ये सीड दिया, ये सीड जो है वो हमने फार्म में डाला तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 50% बढ़ा या 20% बढ़ा. इस तरीके का एक ट्रस्ट उनके पास आएगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली दे विल हैव सम ट्रस्ट ऑन दी गवर्नमेंट ऑल्सो एंड प्राइवेट ऑल्सो.
सो पॉलिसी का जो बात करें, पॉलिसी के लिए अभी हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि एग्रो बिजनेस या एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है और जो मीडियम लेवल के फार्मर्स है उनको कोई सब्सिडी टाइप का चीज़ हम दे पाए। उसके साथ साथ जो एफपीओज है और जो जो स्टार्टअप है, इंक्यूबेटर्स है, उनको भी कैसे सरकार सहायता कर सकती है उसका भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल पार्ट जो है फॉर दी ऑल दिस कैटेगरीज starting from the small and marginal farmers, big farmers, and the incubators and FPOs and women farmers, everybody. तो ये सबको साथ में लेके हम लोग कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, इस टाइप का पॉलिसी के लिए हम विल ट्राई एंड डेफिनेटली वी विल गो हेड विद दैट। थैंक यू। Perfect. We are having a lot of questions, right? Yeah. So, see, I think one common question which we'll take, like, it is about the climate change. And so that is for sure, like, it is happening. Yes, we are seeing climate change is happening. And FAO says that actually in next, by 2050, at least 8 to 10% of our yields will decrease because of climate change. And we are already seeing, like, because of the heat wave, what's happening with the wheat, like, suddenly the yields have gone down drastically. उसमें सर एक्चुअली एक थोड़ा सा आई वुड ऑल्सो अगेन रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, राइट सर, हर बार हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है लेकिन भाव बढ़ जाते हैं, राइट। तो आज तक कोई ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई है, राइट। हम हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन ही करते हैं, राइट। चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, ड्रॉट आए, कुछ भी आए, हमारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड ही होता है। भारत ने अचीव किया रिकॉर्ड प्रोडक्शन। और सर मैं खुद खेती किसानी के अंदर, मैं 10 दिन गांव के अंदर ज़मीन से कनेक्टेड रहता हूँ सर। मेरे को वहाँ पे कुछ और दिख रहा होता है, लेकिन वो नंबर देखता हूँ तो नंबर में मैं भी चौंक जाता हूँ कि भारत ने 44 लाख टन तुअर उगाई, मेरे को ज़मीन पे 32 लाख से ज़्यादा दिख नहीं रही है, राइट। और मेरे को लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। फिर मेरे को मालूम पड़ता है तुअर के भाव 138 रुपये हो गए, जिसका MSP 74 रुपये था। तो मैंने कहा तो सरकार बेवकूफ़ है, अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो 138 नहीं होना चाहिए था, राइट। सो ये आई थिंक द कैलकुलेशन, आई नो पॉलिटिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वन फाइन डे सेइंग कि दैट एक्चुअली ने पिछली बार से 30% कम किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिकंसिलाइजेशन ऑफ डेटा होना चाहिए। उसके बाद तो पहले तो हमको ये पता ही नहीं कि हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि हम हर साल रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, right? So I think the first answer is that we'll have to come out with the right data, right information, then we'll decide actually climate change का अपन उसको how to mitigate it. But I think government of India is doing fabulous job. CRISPR-Cas use based like gene editing technology use करके राइस की अच्छी varieties लेके आई हैं. And Gujarat has been always pioneer. अगर आप देखेंगे चाहे कपास की बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, हरदम प्रोग्रेसिवली अच्छी वैरायटी हिंदुस्तान के अंदर एक साथ 116 वैरायटी बाद में रिलीज हुई थी, उसमें से 4 वैरायटी तो गुजरात में पहले से उगनी चालू हो गई थी. सो गुजरात हैज बीन प्रोग्रेसिव देयर ऑल्सो. So I would say, sir, climate change, I know we all know it is a problem, but the answer is a $1 million question. You would like to add something on this, sir? Question is regarding some of the topic which is relative to that. Climate change पे कुछ बोलना चाहेंगे? I'm not the expert in the climate change, but if I say in the layman language, I've been traveling many of the countries in terms of trading or going exploring the buyers or visiting the countries. If you see, everywhere we are facing the climate change, and it is not actually affecting to the just crop or agriculture, but it is also affecting the whole environment. Either it is a global warming or either it is, but if we talk in the agriculture, if I see even in the Thailand, Vietnam, who are actually competitors of us, right? There is a climate change, but their government policy has actually adopted that change, that they are facing it, but they are also overcome it. And that's why, so change is coming, but how our things are working or system is working. So it is not for us that global change or climate change is coming. It is for everybody. So I think it would be like more important that how we face it and how we overcome it. Perfect. With that, बेसिकली जब हम क्लाइमेट चेंज का बात करते हैं तो एक दीपक जी ने बहुत बढ़िया बताया डेटा के बारे में. जब आप मानसून का बात करते हैं, गर्मी का बात करते हैं, ठंडी का बात करते हैं, तो लास्ट जहाँ तक मुझे पता है लास्ट 50 साल का डेटा हमारे डिपार्टमेंट के पास होता है. अभी आप लास्ट 5 साल का भी डेटा ले लोगे, हाउ मानसून इज कम, हाउ अर्ली मानसून कमिंग, हाउ दिस रेन इज कमिंग, तो उसका जो पूरा पैटर्न है लास्ट 5 साल का या 10 साल का वो हमें पता चलता है. जब टाइफून का बात होता है,
बाकी चीज़ों का बात होता है, तो ये सारा जो डेटा है ना वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट हैज़ गो इनटू द डिटेल्स एंड अगर आप डेटा एनालिटिक्स करोगे तो आपको ये पता रहता है कि लास्ट 5 साल या 10 साल में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है या रेन जो है उनका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले आप देखोगे जून में रेन आता था और अभी आप देखोगे जून के पहले भी आता है या फिर अगस्त में चलता है, अक्टूबर नवंबर तक चलता है। तो फार्मर को ये पता ही नहीं चलता है कि रेन कब आने वाला है, कब जाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है उसको डेटा एनालिटिक्स करके एक पैटर्न हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और पैटर्न एक बार बनता है तो वो हम अगर फार्मर को थोड़ा कन्वे कर सकते हैं तो भी मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस बहुत अच्छी से क्रिएट होगा। उसके अलावा भी जैसे मैंने पहले भी बोला कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच आर कमिंग इन द न्यू दिस टेक्नोलॉजी और बाय वे ऑफ समथिंग। तो अलग अलग प्रकार के फार्म हो या अलग अलग प्रकार के, जैसे अभी ये प्लास्टिक हाउस है, नेट हाउस है, बाकी बहुत सारा टेक्नोलॉजी अभी नया नया फार्म में भी आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मशरूम का बात हो रहा है, छोटा छोटा, दे आर डूइंग जस्ट इतना ही रूम होता है जिसमें मशरूम उगाते हैं, केसर उगाते हैं, ये हमने देखा हुआ है। तो इस टाइप का भी अभी नया नया चीज़ें आ रहा है, तो उससे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उस तरीके का भी हमें सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज वो हमारे हाथ में नहीं है, बट उसके रिगार्डिंग जितने भी डेटा है वो हमारे पास है। तो डेटा का एक एनालिसिस करके हम एक पैटर्न करके फिर उसको अगर आगे ले सकते, मुझे लगता है वी कैन हेल्प समवॉट टू द फार्मर्स। Thank you. So we had a very sharp discussion, and maybe Mr. Sadia had raised some issues. Each speaker gave his perspectives, but मुझे लगता है कि ये जो माध्यम है, ये जो मंच है, वो प्रश्नों के लिए नहीं है, ये संवाद के लिए है। इट इज़ फॉर डायलॉग। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये संवाद से हमें उस प्रश्नों के सॉल्यूशंस की ओर जाना है, और मुझे लगता है कि कैसे हम उस दिशा में आगे जाए, इसमें ये संवाद बहुत मायने रखता है। आने वाले दिनों में यहाँ जो भी प्रश्न उठाए गए हैं उसके सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़े, इसी भावना के साथ वी कंक्लूड दिस सेशन। एंड I would like to invite Mr. Falgun Mode, Joint Director, Horticulture, for concluding remarks as well as vote of the thanks. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing team, I wish to thank our distinguished panelists, Mr. Deepak Parikh, Director, Indian Chamber of Food and Agriculture, Mr. Neeraj Shah, CEO, Henby Tech Incubation Private Limited, Mr. Vikram Sadia, MD, Agri-C Group, for sharing their valuable time, knowledge, and insight. Your thoughtful perspective have made today's discussion truly enlightening and engaging. I also thank to Sri Vijay Kharadi sir, MD, Gujarat Agro Industries Corporation, for your presence, guidance, and encouragement. Finally, a big thank of you to all participants for active involvement. It is seen that a bunch of papers come over here with a lot of questions, but due to the constraint of times, we could not entertain it. But it shows your active participation. So finally, big thank you to all participants for your active involvement. Your presence added great value to this discussion. Thank you all once again for making this panel discussion a grand success. Thank you. Thank you, sir. And as a token of our love and gratitude, we would like to present a memento to our esteemed guests. I would request Shri Vijay Kharadi, sir, MD, GAICL, to kindly present memento to our guest speakers, Mr. Neeraj Shah. Thank you, sir, for being here and sparing your valuable time. Mr. Vikram Sadia. And our moderator, Mr. Deepak Parikh. Sir, we are thankful to you for successfully moderating this session.
Also would like to request Mr. Vijay Kharadi sir to kindly present memento to our special guest Mr. Dharam Kumar Siraj sir, High Commissioner. Sir, we are thankful to you for your esteemed presence. Thank you, sir, for being here. Thank you, Mr. Kharadi. And here we conclude this, end up this session, but requesting each one present here, all the participants, kindly be here because in a short while we are going to start our next session. So please be here. Thank you once again, all the esteemed speakers.